So very good morning children, welcome back to the video session of class 10 science. So in this session we are going to learn chapter 11, which is human eye and colorful world. So here this is part 1 video of this chapter 11, the first video. So in this few topics are deleted from the syllabus of this year 2021. Actually there is a confusion in the deleted portion and the portion which is revised. So because in the revised portion human eye is not written there, okay, whether it is to be taught or not, but in the deleted portion it is written very clearly the function of lens in the eye has to be deleted. Yeah, it is already deleted, and the applications means the application in the sense the diseases occurring due to the lens in the eye. So those things like myopia, hypermetropia, astigmatism, presbyopia, so these things are omitted. But the confusion is it is not clear that human eye and the functions of each part of human eye is omitted or not. But in the deleted portion which is written, the function of lens in human eye is omitted. तो फंक्शन ऑफ लेंस के अलावा इसका मतलब बाकी सब पढ़ना है, लेकिन रिवाइज पोर्शन में ह्यूमन आई का कोई वर्ड वहां पे लिखा हुआ नहीं है. सो देयर इज अ कंफ्यूजन इन दैट. बट एनीवे आई एम गोइंग टू टीच यू ह्यूमन आई, and human eye is an important information for you. So you are welcome to learn that. The first topic is then human eye that we are going to learn here. So and here it must be little bit bulgy. So these are called ciliary muscles, and this is the eyeball. Actually, this is the eyeball and ciliary muscles, and this is the eye lens. So this is also ciliary muscles, and this is also ciliary muscles, which holds this eye lens, and then this is called cornea. And what is the cornea actually? I should say when you look at your eye, आपको सिर्फ इतना सा पार्ट दिखता है. Actually this is a spherical football like thing. तो ये spherical football like thing के आगे एक फुटबॉल में, मान लो आप एक फुटबॉल में अगर आपने ऐसा एक डायग्राम बना दिया तो इतना ही आपको बाहर दिखता है. बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स योर स्किन, आपकी स्किन यहाँ पे आ जाता है, आपकी स्किन आ जाती है, और यहाँ पे आई लैशेस आ जाता है, यहाँ पर भी आई लैशेस आ जाता है. सो द ओनली पार्ट दैट यू सी इज हियर. सो हियर इज समथिंग कॉल्ड ए ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक थिंग. It's not glass but a transparent glass like thing which is actually called cornea. So that is here cornea. And here is some liquid and here also some liquid, and the liquid which is here is aqueous humor, and this is vitreous humor. So इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33 के आसपास है, 313233 के आसपास है. And here is again a screen like thing.
बिल्कुल एक पर्दा जैसा एक चीज है, पर्दा ही है पूरा जो आई लेंस को कवर कर रहा है. And then and that one has, so it means here is a, you know, the color of the eye is actually the color of that particular screen like thing. Yeah, the particular curtain like thing, I should say curtain. So that curtain like thing is called iris. So the curtain like thing is called iris. And then there is a hole in the curtain. There is a hole in the curtain, and the hole is adjustable. This radius is adjustable. And who adjusts the radius? Iris adjusts the radius. So what is the function of iris? Iris control the radius of pupils so that the amount of light entering the eye can be controlled. So this is pupil, and this pupil is this one, the hole here is pupil. So inside there is a, you know, there is a black you know, membrane or whatever you can say. और ये आपकी एनसीईआरटी में इसका व्हाट इज इट लेबलिंग नहीं है, लाइक खोरोइड. और ये जो बाहर जो है वाइट है, सो ये एक्चुअली क्या है, ये जो बॉल है पूरा वाइट दिखता है अपन को, एंड दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा. सो दोस थिंग्स आर एनीवे नॉट हियर, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड रेटिना. And the retina has so many, you know, fiber like thing called so many fiber like thing called optical nerves. Bunch of optical nerves are there, and the optical nerves, the input of the optical nerves goes to optic nerve. Yeah, optical nerves goes to the brain. Means it is like, you know, a wire and from your mobile, which, you know, take the information of the mobile and put it into a laptop or whatever for analyzing. The same way, the information from the optical you know, from the eye is carried by the optical nerve to your brain. So आपके जो पूरी जो बॉडी है और उसमें यू नो नर्व्स है, जैसे आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वैसा सर्कुलेशन के लिए सिस्टम नहीं है एक्चुअली नर्व्स, बट इट इज अ सर्कुलेशन ऑफ मैसेजेस एक्चुअली, है ना. सो सर्कुलेशन ऑफ मैटर, circulation of oxygen, circulation of digested food, circulation of necessary things in your body like water, whatever it is, whether it is vitamins, minerals, all those things, food materials, and electrolytic things, and elements like sodium, potassium, a lot of things, iron, so calcium. So all these things are circulated by your blood. But there is another type of thing which is circulated, that is actually not matter, that is electrical pulse, or I should say message. So आप मोबाइल में कोई मैसेज टाइप करते हैं, फिर आप किसी को सेंड करते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में वो आपकी मोबाइल में काम आता है, मतलब ट्रैवल करते हैं. और जब वो एयर में ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रैवल करता है ना, कोई तार में ट्रैवल करता है तो एक इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में, एक वीक इलेक्ट्रिसिटी जो आपको शॉक नहीं दे सकता, ऐसा एक वीक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाता है. इवन आपका हार्ट जो है वो क्या करते हैं, एक मिनट में 72 टाइम्स इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, इट इज बीटिंग. सो दैट कॉन्ट्रैक्शन takes place due to an electric pulse coming from your brain at regular intervals of time. So अगर आपके ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज होगा जो हार्ट को कंट्रोल करता है, then surely your heart will stop. So इसीलिए ब्रेन इंजरी is always
it's not like your leg injury, and it's not like a hand injury. Brain injury is always a very serious thing because it controls a lot of things, and by giving electrical pulse, by giving electrical messages, and the pathways which are used for giving and collecting the electrical impulses, electrical messages are called nerves. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके एक चैप्टर है, हालांकि उसमें बहुत सारा टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम एक ओवरऑल व्यू लेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल पल्स कैसे आपकी बॉडी में काम करते हैं. सो टू कोऑर्डिनेट योर लाइफ, कोऑर्डिनेट योर मोशन, कोऑर्डिनेट योर थिंकिंग, कोऑर्डिनेट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑल. तो यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व है. ये ऑप्टिकल नर्व कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना, बिकॉज व्हेनेवर यू लुक एट समथिंग, the light ray and the lens helps the light ray to form an image at the retina, and then the retina के अंदर rods and cones करके cells होती हैं जो लाइट के लिए लाइट की तरफ respond करते हैं, and it makes some corresponding impulses, corresponding electrical impulses, and send it to the brain through optical nerve, and then the brain interprets that, okay, now you are seeing a human being that you already know, and also brain interprets is using it's already collected information in the memory that the one who is standing before you is your chacha, because you have already seen him. But if you have never seen him, then your brain will not identify that person. But if your brain you have already seen, then the information is in a memory, and then it can analyze with whatever you are watching, whatever you are seeing, whatever the information is going as an input to the brain, and the brain can analyze it with, compare it with already stored data, and gives you an idea of what you are watching, what you are looking at. तो ये एक बहुत ही है ना कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है, लाइक ए कंप्यूटर टेस्ट, और कंप्यूटर से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है जो आपकी ब्रेन, जो बिल्कुल 300 ग्राम वेट वाला ब्रेन जो है, ये सारे उसमें से एक फंक्शन है, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच फंक्शन व्हिच योर ब्रेन इज परफॉर्मिंग. Okay, so in the biology chapter when we'll be dealing with that, and we'll be talking about all those things. So abhi I think only this much labeling is there, and more labeling we can do, but it is not necessary, and even we do not know that this is there in the syllabus or not. It is not written, so some people say that it is not there, but in the deleted syllabus ह्यूमनाइज डिलीटेड करके लिखा हुआ नहीं है, ओनली द फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमनाइज डिलीटेड, क्योंकि वो लेंस के बारे में फिर कुछ एप्लीकेशंस हो रहे हैं. देयर आर सम करेक्शंस एंड देयर आर सम डिजीजेस लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड ऑल. ओके, सो यहाँ पर ये लेंस, कोई भी लेंस हो, इट कैन मेक एन इन्वर्टेड इमेज. कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें, कॉन्केव लेंस नहीं, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, सो अगर आपके पास अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस को आप अपनी घर पे है ना, आई थिंक इन द इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस ये स्मॉल कॉन्वेक्स लेंस टाइप थिंग इज अवेलेबल, है ना, जो आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं उसके अंदर एक छोटा सा हैंडल वाला एक छोटा सा प्लास्टिक का कॉन्वेक्स लेंस अवेलेबल है. तो वो कॉन्वेक्स लेंस या इवन ग्लास का भी कॉन्वेक्स लेंस अवेलेबल है. सो कॉन्वेक्स लेंस को आप अपनी घर का जो विंडो है, विंडो की तरफ रखो और आपके हाथ को थोड़ा सा धीरे धीरे उस कॉन्वेक्स लेंस के पास मिला हुआ, तो विंडो का एक उल्टा नजारा आपको आपके हाथ में दिखेगा, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस हैज एन एबिलिटी टू फॉर्म ए इन्वर्टेड इमेज. सो दैट इज द सेम थिंग योर लेंस ऑल्सो डज. सो एनीवे, सो लेंस का जो फंक्शन है वो ओमिटेड ऑलरेडी है, तो हम बाकी फंक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सो कॉर्निया का फंक्शन क्या है, सबसे बाहर का जो हिस्सा जो मैंने आपको बताया कि ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको, एक्चुअली वो गोल गोल का कोई कलर नहीं होता, दैट आउटसाइड इज लाइक ए ग्लास, ट्रांसपेरेंट, इसका कोई कलर नहीं होती. फिर कलर जैसा उसमें दिखते हैं, जैसे कि भूरा कलर दिखते हैं, ब्लैक कलर दिखते हैं, किसी का लाइक येलो,
so maybe green. So different colors of the eyes are, that is due to the gene there, anyway, DNA. तो ये जो कलर है एक्चुअली, जो आईज का जो कलर है वो इस कॉर्निया का कलर नहीं है, इसके पीछे एक कर्टन है, एक पर्दा है आइरिस, उसका कलर है. So the cornea is a transparent one, the outer part. So this is only a circular part actually. So and that circular part is a transparent part through which light can enter. And there is a curtain which has a hole at the center, and the curtain controls the size of the hole actually. So the curtain is called iris. So iris controls the amount of light entering. So अगर आप ज़्यादा ब्राइट लाइट में खड़ा है तो आपको इतना लाइट का ज़रूरत नहीं है, आप है ना, आपके आंखें बिल्कुल ऐसे ऐसे छोटा छोटा हो जाएगा अगर ब्राइट लाइट के सामने. अगर आप कोई लाइट की तरफ देखेंगे तो भी आपको आपके आंखों को बहुत ऐसा छोटा करके देखना पड़ेगा. और उसका रीज़न है कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत है. तो वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट ही हमारे आई बॉल के अंदर जाना चाहिए. तो उसके लिए व्हाट हैपेंस इज दिस आइरिस, है ना, एंड आइरिस एडजस्ट द रेडियस एट द हॉल, रेडियस ऑफ द हॉल, एंड द हॉल इज कॉल्ड प्यूपल. वो हॉल का नाम यहाँ पे प्यूपल है यहाँ पर. सो ये वाला डायग्राम आपको एग्जाम के लिए बनाना है, ये वाला तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना. सो दिस इज प्यूपल. और प्यूपल का जो साइज है, अगर आप डिम लाइट में बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली प्यूपल का साइज काफी बड़ा हो जाएगा, है ना. यू कैन लुक एट somebody's eyes at your home and see the radius. Once you look at your when you are sitting inside a room, and then you take that person outside and then you clearly look at the eyes, then you can see the difference in the hall. When in the room the hall is very big, but in the outside where there's a bright light, the hall is very small. So adjusting of the size or the radius of the pupil is a function of iris. And pupil, the function of pupil is the same function, regulating the amount of light required for image formation. Okay, so there are two types of liquid here. One is aqueous humor and another is vitreous humor. और ये aqueous humor और vitreous humor जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रैक्ट होने से बचाते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो रोशनी आएगा वो ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा. तो ऐसा ना होने के लिए एक प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लिक्विड इसमें है. और इस लिक्विड के एक और काम है कि इट ऑल्सो हेल्प्स दिस आई बॉल टू बी इन द प्रॉपर शेप एंड get rid of what you call like strong impacts. तो इसमें कोई ज़्यादा धक्का लग गया, चोट लग गया, तो इसका जो शेप है वो बिल्कुल वैसा ही रहने के लिए और ये आई बॉल को बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर का ज़रूरत है. ठीक है. सो और इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक कोटिंग जैसा है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे रेटिना है. एंड रेटिना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना? रेटिना का फंक्शन है कि it is a place where the images form and it has optical nerves. और इसमें भी ये ना ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट वगैरह काफी डिटेल्स है, जिस डिटेल के बारे में मैं जा नहीं रहा अभी. सो एंड देन there are optical nerves या optic nerves which takes the input in the digital form, means in the electronic form, and then send it to the human brain. And the human brain always identify the inverted image as the erect image. So यहाँ पर inverted image बनता है and the image is formed like this. Suppose here is a tree and the image is formed like this. An inverted image is formed there. So inverted image of the tree will be formed there, and
your brain will identify it as a erect image. So that's how the part of the brain which controls eyes functions. और इसके ऊपर कुछ मसल्स भी है ना, इसके ऊपर ये जो आई बॉल है, आई बॉल इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय फ्यू मसल्स ओवर इट, एंड ऑल्सो इट इज लोकेटेड इन ए बोनी सॉकेट, है ना, बोन्स का बना हुआ एक खड्डे में या एक सॉकेट में स्थित है, ताकि इसके लिए अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाए, है ना. सो इफ यू हैव एवर सीन ए स्कल इन द लैब or skull in the videos or anything, then you can easily understand that in place of eye there is a hole and there are strong bonds here, है ना, ताकि कोई भी, है ना, अचानक होने वाला कोई भी इम्पैक्ट से बचा सके आइज को, है ना. सो somewhere you hit your head, है ना, somewhere you hurt your body, तो एकदम से ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उसको ज़्यादा हेवी प्रॉब्लम ना हो, हेवी नुकसान ना हो, उसके लिए ये सब प्रोटेक्शन है. और ये जो आई बॉल है, और आई बॉल को आपको इधर देखना है उधर देखना है, तो आप देख सकते, आप ऐसे ऐसे करेंगे तो व्हाट इज हैपनिंग, यू फील लाइक यूर एप्पल ऑफ योर आई, एप्पल ऑफ योर आई बोलते हैं इसको, बट दैट इज एक्चुअली द कॉर्निया. अब आपको ऐसा लगता है कि कॉर्निया उधर जा रहा है, एक्चुअली कॉर्निया उधर नहीं जा रहा. इट इज लाइक योर पुराने कंप्यूटर्स में देखा होगा, देयर इज एन एक्स्ट्रा वेब कैमरा, तो वेब कैमरा किधर है वो, तो कॉर्निया उधर नहीं जा रहा है. ये पूरा जो वेब कैमरा है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो ऐसे ऐसे इसलिए घूम रहा है बिकॉज देयर आर सम मसल्स ओवर इट एंड द मसल्स आर कंट्रोलिंग इट. मसल्स, यहाँ से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ वाला रिलैक्स हो जाएगी. सो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ वाला रिलैक्स हो जाएगी. सो द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो दैट इट विल मूव हियर एंड देयर. और आप कितनी दूर तक देख सकते हैं, कितना पास तक देख सकते हैं, that's another point of discussion. How far you can see, you can see at even the object at infinite distance में जो ऑब्जेक्ट है उसको भी आप देख सकते हैं. लेकिन एक कंडीशन है कि वहां की जो लाइट रे है वो आपकी आंखों तक पहुंचना जरूरी है, और वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में पहुंचना जरूरी है, क्योंकि तभी एक क्लियर विजिबल इमेज, नहीं तो एक बहुत धुंधला इमेज बनेगा जो आपका ब्रेन इवन उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा. इसीलिए हम बोलते हैं कि हम दूर दूर का स्टार्स नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए कुछ स्टार्स तो अपन को दिखता है, लेकिन बहुत दूर जो स्टार है वो दिखता नहीं है. यू हैव टू लुक इट थ्रू ए टेलीस्कोप, एंड द रीजन इज इट इज नॉट बिकॉज आपके आई का अकोमोडेशन कम हो गया, वो इसीलिए है कि उनका जो रोशनी है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा, और अगर पहुंच रहा है तो बहुत ही कम रोशनी पहुंच रहा है, जो एक बिल्कुल ब्लर्ड इमेज भी नहीं बोल सकता आप इसको, बिल्कुल एक लेस ब्राइट वाला इमेज को पैदा कर रहा है. सो एक वेरी लेस ब्राइटनेस वाले इमेज को पैदा कर रहा है. एंड इट इज सेम लाइक आप अंधेरे में आपको नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि बहुत ही कम लाइट आपके आंखों में आ रहा है. तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट आपके आंखों में आएंगे तब जाके यू आर एबल टू सी द थिंग्स. सो देयर मस्ट बी ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग टू योर आईज या एंटरिंग योर कॉर्निया, एंटरिंग द प्यूपल. सो डिस्टेंट स्टार्स का आपके प्यूपल तक पहुंचना बहुत कम रोशनी पहुंचती है ना. उसका के एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों होता है, so I can explain you with another example here. So you see here there is a light producing object, so it produces light. So many rays are arising from it, so many rays are arising from it, millions of rays. So if you are keeping your eye here, suppose,
then so many rays are entering that particular area. But if you are keeping your eye at a big distance, the same eye I am going to make it here, okay? Same size, the same eye, the same size. But the problem is how many rays? Only one ray is entering. Yeah, two rays are entering. But how many rays are entering here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So जितना पास में होता है, कोई भी चीज हो जितना पास में होता है, number of rays entering will be too many. जितना दूर होता है, number of rays entering will be less. और सेम साइज मैंने यहाँ पे बनाया है. आपको ऐसे लग रहा होगा छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है, एग्जैक्टली सेम साइज है. ये थोड़ा बड़ा बनाया है और उसको और छोटा बना सकता हूँ मैं. तो अगर ये सेम साइज वाला आपके आइज, तो आपकी साइज आइज का साइज थोड़ी बदल रहा है. होल का तो फिर भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है वो ब्राइटनेस के हिसाब से, लेकिन एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में से जो रोशनी आएगा, वेरी लेस नंबर ऑफ रेज एंटरिंग आवर. Why we are able to see sun properly? Because sun is very near to us. When we compare the sun with other stars, and other stars are very very far away from us. So even though sun is also a star, but sun is the closest star to us. But other stars are trillions of light years, millions of trillions of kilometers away from us. Okay, so let's go with the next topic. So in the textbook, the next topic is actually the power of accommodation of eye and the defects of vision and their remedy and their correction. But these topics are not there in the text, and the power of accommodation is actually the function of eye lens. So eye lens का function है कि आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. उसका जो आई लेंस का जो आपने जो आई बॉल में यहाँ पर सिलियरी मसल्स है, यहाँ पर जो आई लेंस देखा है, ये आई लेंस जो है, ये आई लेंस बिल्कुल थिन भी हो सकता है और थोड़ा सा थिक भी हो सकता है. तो वो उसके ऊपर जो सिलियरी मसल्स है वो उसकी एक्शन से होती है, उसका कॉन्ट्रैक्शन और उसके एक्सपेंशन की वजह से होता है ना. सो जब ये थिन होता है तो इट कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट. जब ये थिक होता है तो इट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. सो जब ये थिक होता है तो योर व्हाट यू कॉल सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड जब ये थिन होता है तो सिलियरी मसल्स एक्सपैंड, रिलैक्स. एक्सपैंड नहीं, एक्चुअली इट रिलैक्सेस. इट्स अ नॉर्मल पोजीशन. सो आपको दूर की चीजों में देखने के लिए कभी भी आपके आंखों में आईज में जोर नहीं आता, बिकॉज योर सिलियरी मसल्स रिलैक्स देयर. लेकिन when you look at very close objects, your ciliary muscles are contracting and there is a strain in the eye. तो इसीलिए ज्यादा पास नहीं देखना है. So the near point of a human eye is the near point of a human eye is 25 centimeter. 25 centimeter, that is a near point of human eye. सो 25 सेंटीमीटर के दूर में अगर आप कोई चीज को देखते हैं तो इट्स ओके. लेकिन नॉर्मली अपन मोबाइल में जब खेलते हैं तो ऐसे एकदम पास में, इवन 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नहीं होती. सो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में आप मोबाइल में खेल रहे हैं, सो दैट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल टू योर आई, बिकॉज आपका आई मसल्स जो है वो ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सिंग का जो पावर है वो धीरे धीरे खो देगा ये. तो फिर आपको दूर और पास की चीज दोनों देखने में दिक्कत होगी. यू हैव टू देन यूज स्पेक्टिकल्स. सो आई एम नॉट गोइंग एनीवे इन डिटेल टू ऑल दोस करेक्शंस एंड ऑल दोस defects of vision. So defects of vision and correction I am not going to topic because that is very clear in your syllabus, that is omitted. Okay, so I'm not going into the topic of which is already omitted. So let me go to the next topic, that is refraction through a prism. So ये जो टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया, इसमें
अभी भी डाउट है कि ये ओमिटेड है या नहीं, लेकिन ओमिटेड हो या नहीं हो, इट इज ए गुड इंफॉर्मेशन अबाउट योर आई and it is a very informative thing, so you must know and you must learn this human eye. So let's go to the next topic, that is refraction of light through a prism. So what is a prism? So what is a prism? What a prism look like? So I have a prism with me. Anna, I have a prism with me. You can see this prism. So अगर आप इसका बेस देखेंगे प्रिज्म का या प्रिज्म का एक साइड देखेंगे तो इट विल बी ट्रायंगल, है ना. दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. इसका ऑपोजिट साइड भी ट्रायंगल है, लेकिन इसका जो ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है ये ट्रायंगल नहीं, इट्स ए रेक्टेंगल. So this is a rectangular side and this is a triangular side, और इसका बेस भी रेक्टेंगल है. तो इसका जो बेस है इट इज अ रेक्टेंगुलर थिंग, और इसका दोनों साइड है ये भी रेक्टेंगुलर है. सो इट हैज एक्चुअली ए बेस एंड 4 साइड्स, है ना. सो इट इज अ रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड बोल सकते हैं आप इसको. एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है, बट the sides, 2 sides are triangle and the 2 sides are two sides are rectangle and the base is also a rectangle. So this is a typical prism, even though it is rectangular, but in the 3D it looks like a triangle. So now it's look like a triangle for you. So this is a prism. So अभी यहाँ पर जो मैं prism बना रहा हूँ, and I am talking about only this part, है ना. सो इस साइड में कोई लाइट इंसिडेंट हो सकता है, सो ये वाला साइड में लाइट इंसिडेंट हो सकता है, तो वो लाइट इसके अंदर कैसे आगे बढ़ेगा, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस. सो व्हाट ऑल यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10, है ना, उसका वीडियोस आप एक बार दोबारा देख लीजिए, खास करके जो लास्ट और लास्ट 2 वीडियोस. सो लास्ट 2 वीडियोस इफ यू लुक इट, इफ you know watch it again, then you will be able to understand it more clearly. So एक triangular pyramid है, और यहाँ पर जो एंगल है, एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं हम इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसका एक दूसरा नाम भी है, एंड दैट इज रिफ्रैक्टिंग एंगल. क्योंकि रिफ्रैक्शन कितना होगा ये एंगल भी डिसाइड करते हैं, है ना. दिस एंगल आल्सो डिसाइड्स how much it should refract, how much it should bend. It's not only the, you know, the refractive index, it angles also determines. So I'm talking about this prism, and a light ray will be entering here. So a light ray is entering not at 90 degree, at any other angle. So 90 degree में जो लाइन आप यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ इसको, ताकि आप जो डायग्राम बनाएंगे तो वो थोड़ा सा समझ में आ जाए. सो यहाँ पर एक 90 डिग्री में बनाता हूँ. सो दिस इज ए 90 डिग्री लाइन विच इज कॉल्ड नॉर्मल, एंड दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. सो ये जो इंसिडेंट रे है, सो इस साइड से ऐसे एक रे इंसिडेंट हो रहा है, एंड देन व्हाट वी रियली एक्सपेक्ट the ray must go like that in the same direction. But we have learned in refraction, reflection and refraction. Refraction में क्या है, हमने ये देखा कि whenever a light, there is a rarer medium or a denser medium. So whenever a light ray is entering a denser medium from a rarer medium, so it will bend towards the normal in denser medium, and in rarer medium it will bend away from the normal. So it is a denser glass, this is made of glass, so denser medium. So this is denser medium and this is air, so this is rarer medium, हल्का मीडियम. सो हल्का मीडियम से घना मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम में आ रहा है, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना. तो कितनी भी कम ज्यादा बेंड हो सकता है. सो इसका एक्चुअल पाथ से ये बेंड हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया.
and then again you can draw a perpendicular here. So यहाँ पर again expected ये है कि आगे ऐसा ही जाए, लेकिन आगे नहीं जाएगा ऐसे. What will happen? It will again bend. So it will again bend. How it will bend? So इसका opposite हमने ये बोला कि अगर हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, फिर एक रेयरर मीडियम है. So एक ray of light अगर इंसिडेंट होंगे तो it will bend away from the normal. It will bend away from the normal. नॉर्मल से दूर भागेगा. So ये ओरिजिनल एंगल होना चाहिए था इसका, लेकिन ये नॉर्मल से दूर भागेगा. मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लेस. Here angle of incidence will be greater and angle of refraction will be less. So डेंसर में हमेशा एंगल कम होती है और रेयर में हमेशा एंगल ज्यादा होता है, चाहे वो रे ऑफ लाइट कहीं से भी कहीं पर भी जाए, whether it is from denser to rarer or rarer to denser, whatever it is. In denser medium the angle will be always less and the rare medium angle will be always greater. तो इससे आप आराम से समझ सकते हैं कि ये जो है दूर भागेगा या पास आएगा. So you have to bear this thing, then only you will be able to understand it. है ना? So when a ray of light enters from a rarer medium to a denser medium, the light ray will bend towards the normal, and when it enters from a denser to a rarer medium, then the light ray will bend away from the normal. So यहाँ पर ये जो केस है, light ray bent away from the normal, क्योंकि ये air में जा रहा है, so it is going again into the air. So the light ray bent away from the. So this is a normal. So normal की तरफ है तो ऐसे bend होता, लेकिन normal से away है तो ऐसे bend होगी. So अगर ऐसा bend होगा तो towards the normal हो जाएगी, because this is normal 90 degree. So towards the normal की जगह away from the normal. So this is called emergent ray, and this is called refracted ray. So there are three rays here. One is incident ray, refracted ray, and emergent ray. And there are some angles here. This angle is called angle of incidence. This angle is called angle of emergence. So angle of incidence, angle between incident ray and normal है. इसी तरह angle of emergence क्या है? Angle between emergent ray and normal, है ना? And what about refracting and angle of refraction here? Angle of refraction, the angle between the refracted ray and the normal. But there are two angles here, one R1 here, R2 here. Okay, and this R1 and R2 can be same also, but not always the same. Okay, it could be same but not always the same. And there is one more angle here, that's what we have to learn specially. That's a punching point of this diagram. तो इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है और इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या डायग्राम बनाने के लिए बोल सकता है. तो ये डायग्राम आप हर कैसे नहीं बनाना, इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि इस पॉइंट में जब ये आएंगे व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, कि ये किस तरह डिविएट होगी. ये बहुत ही क्लैरिटी होना चाहिए इसमें कि ये डिविएट ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी. नीचे की तरफ डिविएट होगी. फिर ये यहां से बाहर जाएगा तब भी नीचे की तरफ डिविएट होगा. यहां पे नीचे की तरफ डिविएट इसलिए होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है. यहां पर नीचे की तरफ इसलिए डिविएट हो रहा है क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है. But the rule is away from the normal here and towards the normal here. But it deviates, bent downwards, and here also bent again downwards. So इस तरह double bending हो गया इसका. So that's what actually you have to learn for the refraction of light through a prism. तो फिर इन सब एंगल के बीच में क्या रिलेशन है. अब इसमें एक और एंगल है जो अभी मैंने बताया नहीं, वो एंगल ये एक ही है. जो एमर्जेंट रे को थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करो और ये जो इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड करो, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसको बोलता है एंगल ऑफ डिविएशन. R1, R2, E और D, इतनी एंगल्स इसमें. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज आल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. देयर आर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस हियर. And then angle of emergence, and this is angle of what? Angle of deviation.
डिविएशन व्हाट, डिविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट रे अभी कितना डिविएटेड हो गया। और इसके लिए क्लास 12 में एक एक्सपेरिमेंट है ना, इवन यू कैन डू दैट एक्सपेरिमेंट, दैट्स वेरी सिंपल। सो ये प्रिज्म को आप एक कार्डबोर्ड में रखिए, so you keep the prism on a cardboard and on a paper, and then keep this keep this prism there, and then a ray of light enters. So when the ray of light enters, you can keep some objects like pins, जो आल पिन्स आता है उसके एक हेड आता है ना, सो स्मॉल हेड है उसकी, तो ऐसे 2 पिन्स एक लाइन बना के आप रख सकते हैं। फिर वो पिन को इसका ऑपोजिट तरफ से आप देखेंगे तो आपको जिस डायरेक्शन में ये पिन खड़ा है उस डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा इधर ऐसे टेढ़ा होके यहाँ इस तरफ से देखनी पड़ेगी। मतलब ये यहाँ से जो रे आ रहा है, तो आप तो सोच रहे होंगे कि वो रे आपको यहाँ से दिखेगी, लेकिन यहाँ से नहीं दिखेगी, वो रे आपको यहाँ से देखेंगे तब दिखेगी। सो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो यहाँ पर अगर 2 पिन लगाएंगे तो वो पिन यहाँ से जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कहीं खड़ा है वो पिन। सो यू विल फील लाइक द पिन्स आर स्टैंडिंग हियर, बट एक्चुअली द पिन्स आर स्टैंडिंग हियर। व्हाई यू फील लाइक द पिन्स आर स्टैंडिंग हियर? बिकॉज द रे हैज व्हाट? बेंट। The ray has bent, B and T bent. B and D bent is you already know that it's the first form of the verb. Third form of the verb, B and T bent. So it has already bent here and again it bent. So because of the bending, when you look from this side, you can see the same object which is already here, which is actually the object is placed here, but from you look from this side, you can see the object is somewhere here. So actually the object is not here, the object is here. So object वहाँ पे क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे जो ray है ये यहाँ पे bend हो गया, फिर एक और bend हो गया, so यहाँ पर double bar refraction हुआ है। So that's all about this. इन सब के बीच में कुछ रिलेशन भी है। So यहाँ पे एक और एंगल है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, दिस इज। सो जो प्रिज्म हमने यूज किया है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब इसका तीनों साइड इक्वल। तो इस तीनों साइड इक्वल है तो फिर ऑटोमेटिकली हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, बिकॉज टोटल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180। सो दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60, सो ईच एंगल इज 60 डिग्री। सो यहाँ पर एंगल ए 60 डिग्री है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। सो मैं यहाँ पर आपको एक 9th क्लास का इंफॉर्मेशन बताता हूँ। यहाँ पर जो एंगल डी है इसके बीच में एक रिलेशन मैं बता सकता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर जो आई है, वैसे अभी जो मैं रिलेशन बता रहा हूँ दिस इज एक्चुअली नॉट नेसेसरी फॉर यू टू डिराइव, लेकिन वो फाइनल जो आंसर है वो आप लर्न कर लेना। सो ये कैसे होता है? ये एंगल आई है तो ये पूरा भी एंगल आई होना चाहिए, मतलब ये डॉटेड लाइन से लेकर, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? ये अगर आई है तो ये भी आई होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लेकिन होता है, ये पूरा एंगल आई है तो ये होगा I माइनस R, और इस तरह ये पूरा एंगल है तो ये पूरा एंगल ही होना चाहिए, तो ये वाला एंगल होगी E माइनस R। सो इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ऐसे, और ये वाला एंगल D है, ये वाला एंगल है I माइनस R, ये वाला एंगल है E माइनस R2। तो आपने 9th क्लास में जो थ्योरी सीखा है, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो इट मीन्स दैट we can write it like this: I minus R1 plus E minus R2 is equal to D. So you're getting I plus E minus R1 plus R2 is equal to D. So this is one of the relation. Angle of deviation is equal to I plus E minus R1 plus R2. And there is one more relation that we can see. आप इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिए, इसको एक्सटेंड कीजिए, तो ये जो एंगल है इसको मैं एक बार मान लो M मान लेता हूँ। सो एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल M मस्ट बी 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री। और एक
एक क्वाड्रिलैटरल जो है, ये जो क्वाड्रिलैटरल है, इसकी तीनों एंगल को जोड़ने पे एंगल ए और ये वाला एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो ये पूरा 90 डिग्री, फिर ये एम और उसके बाद ये पूरा 90 डिग्री, और इन चारों को जोड़ने पे 360 आएगा, क्योंकि एंगल इन्हें क्वाड्रिलैटरल काइट जैसे चाहिए, ऐसे काइट जैसे चाहिए। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और ये एंगल ए है और ये एंगल एम है। सो ये इसमें 360 डिग्री आएगी, तो ये 90 और 90 180 मिलके उधर जाएगा तो -180, सो यू विल गेट एंगल ए प्लस एंगल एम क्या हो गया 360 - 180, सो इट इज इक्वल टू 180। सो एंगल एम ए प्लस एम इज इक्वल टू 180 हो गया, और r1 प्लस r2 प्लस एम इज इक्वल टू 180 हो गया। तो ये दोनों 180 है, तो ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूंगा, सो ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, राइट साइड 180 है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, तो लेफ्ट साइड इक्वल का मतलब है कि r1 प्लस r2 प्लस एंगल m दैट इज इक्वल टू, this is 180, so this is also 180, angle A plus angle M. So angle M cancels. What is the important information you are getting? This is the important information. What is that? R1 plus R2 is equal to A. So in this we can modify this equation. R1 plus R2 के जगह क्या लिख सकते हैं आप? A लिख सकते हैं। माइनस R1 और माइनस R2 में माइनस कॉमन लिया तो R1 plus R2 हो गया। So this is an important information and I am going to write this all formulas over here. तो ये फॉर्मूला आप बाहर कीजिए, कहीं ना कहीं इवन कॉम्पिटिशन में भी आपको काम आ सकता है। So I plus E minus R1 plus R2 is equal to angle of deviation. और R1, so this is equation number 1 you have to learn, and the second equation is R1 plus R2 is equal to A, angle of the prism, and the third information is I plus E minus A is equal to T. So that's the third information, क्योंकि R1 plus R2 की जगह E. So ये क्लास 9-10 का बेसिक फॉर्मूला से, बेसिक मैथमेटिक्स है ना, ज्योमेट्रिकल थ्योरम से हमने ये करा है। यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल है ना, तो ये आपको अगर समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे डिराइव किया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको डिराइव नहीं करना है ना, ये क्लास 12th में करते हैं। इफ यू हैपन टू लर्न फिजिक्स या ऑप्ट फिजिक्स then you will be learning all those things, है ना। तो ये सब चीजें आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फाइनल रिजल्ट्स है ना, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि नोट डेरिवेशन है ना, सो ओनली द फाइनल रिजल्ट्स यू हैव टू लर्न। और ये फाइनल रिजल्ट्स जो है यहाँ पर एक क्वाड्रिलैटरल और एक ट्राइंगल को कंपेयर करने पे मिलता है, और फिर एक ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल करने पे भी मिल जाता है। तो ये सब चीजें माइनस आई माइनस R1 ये वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये R1 ये R2 ये D है। सो रिफ्रैक्टिंग एंगल का सम हमेशा है ना, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सम हमेशा रिफ्रैक्टिंग एंगल होती है। सो दैट इज द रीजन इवन A इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल, क्योंकि R1 plus R2 इज दी, और R1 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R2 इज ऑल्सो दो सेकंड फेस, सेकंड चेहरे पे उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है ना, क्योंकि यहाँ पर एक फेस है इसकी है ना, जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे एक फेस है जहाँ से वो इमर्ज हो रहा है, क्योंकि बीच में कुछ ग्लास का मीडियम भी है। सो देयर इज अ मीडियम एयर एंड देन फ्यू सेंटीमीटर डिस्टेंस में मीडियम ग्लास है, एंड देन द मीडियम इज अगेन एयर। सो एयर टू ग्लास देयर इज ए deviation, there is a bending, and from glass to air then again there is a bending. So there are two refractions, R1 and R2. Even though this is the angle of incident here, लेकिन एक ग्लास के अंदर इसीलिए इसको भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बोलेंगे, है ना। So ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए अगर आप सेपरेटली बात कर रहा है तो, लेकिन ये अपने ओवरऑल एक घटना के रूप में इसको देख रहा है। सो दिस इज एंटायरली ए ग्लास, तो ग्लास के अंदर जो भी एंगल आ रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही कह लेते हैं, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बाहर जो निकल रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बजाय एंगल ऑफ एमर्जेंस, एमर्ज मतलब बाहर निकलना होता है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस फॉर्मूलास, I plus E minus R1 plus R2 is equal to angle of deviation, और ये angle of deviation is actually the angle between the incident ray and the emergent ray, angle between incident ray and the एमर्जेंट रे, जिससे आपको ये समझ में आया कि ये अगर इंसिडेंट रे है और ये एमर्जेंट रे है
तो ये जो इंसिडेंट रे कितना और मुड़ गया, कितना मुड़ गया, कितना मुड़ गया, कितना मुड़ के वो इमर्जेंट रे बन गया. सो हाउ मच द इंसिडेंट रे हैज डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, that is actually the angle of deviation. और R1 plus R2 which are actually the refracting angles, है ना, वो A के बराबर है. और एंगल I प्लस E, R1 plus R2 की जगह आप ये लिख सकते हैं. अब इसमें एक और कंसेप्ट होती है मिनिमम एंगल ऑफ डिवीजन करके, वो कंसेप्ट आपको सीखने की जरूरत है.